So, good morning, one and all. Welcome back to the today's webinar on future of digital technology. So here we are back with the today's webinar. So I, Preeti Jain, welcome you all once again for our 2 days webinar on future of digital technology. So as this webinar is going from last 2 days, and many participants from all over India is going to watch this live, and all are going to get benefit from this. Yesterday we had talked all on technology related to DCA, and today we are going to talk about the technology and how the technology works in the field of media, how the technology is working in the field of media. So here we have, for today's session, we are going to welcome one of the dynamic personality, Mr. Paresh Pandya sir. Before we starting with the session, let me introduce regarding our college. We are Sri M D Shah Mahila College, and we are having 9,000 girls in our college. We have junior college, 11th, 12th, BA, BCom, graduation degree with BA, BCom, BMS, BAF, BAFE, BCA, BMM, all these self-finance courses, as well as we do have master courses, MA and MCom. We are also going to start MA with home science. So we right from 11th to masters, we are nurturing the students very well, and we have a strength of 9,000 girls in our college. We have 9,000 girls in college. As we know that in this particular situations, we need to know about technology. So where in which field technology can work. आपको कल बहुत अच्छे से बताया गया था कि कौन कौन से फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. तो नाउ आज हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज मीडिया में किस तरीके से होता है. टेक्नोलॉजी का यूज मीडिया में किस तरीके से हो रहा है. So for that, I would like to welcome one and all the dynamic personality, Mr. Paresh Pandya. Mr. Paresh Pandya, sir. Thank you. Yes, and we are very fortunate that we have a very dynamic principal, Dr. Deepa Sharma. We have IQAC coordinator, madam, and vice principal of the college, Subha Acharya, ma'am. We have with us Praveen Sirgaonkar, sir, vice principal of junior college, Beena Atluri, madam, supervisor of junior college, and MCVC section head, Selvam, sir. So all these people are working as a strength for the college, and our management is very good. So now we are going to start with the session today. That is second day session of Future and Digital Technology by Paresh Pandya. Let me introduce Paresh Pandya, sir. He is having his educational qualification, is pursuing PhD, his marketing with MBA. He has completed his PGDCA, his diploma in interior designing and jewelry designing. Paresh Pandya is a corporate trainer for many companies for IT like Capgemini, Mahindra and Mahindra. He is taking corporate training, seminars and webinars in many renowned organizations. He is a visiting faculty as well in our college and at many places as SMDT Juhu, Hire College, Pearl Academy. He is a guest lecturer at many colleges. He's working as a guest lecturer at many colleges. He had given training to many famous personalities like Twinkle Khanna, Shilpa Sharma, Sri Hiten, and many more. So now we have Paresh sir with us. So I would like Mr. Paresh sir to please take ahead with the session. Paresh sir, now we will start. Thank you very much for these opportunities. Students, today I will tell you about the digital technology related to digital for media.
okay, or for advertisement or for designing and animation. So it is a very vast field, and for that we are today, I'll start with my presentation on that. So हम लोग देखेंगे, it is a very vast field and it is connected to so many industry, right? So now I'll start with my presentation. Okay, one second. Okay, yeah. So basically this webinar is guiding you more about like what is the future of designing and animation, right? So when we are talking about designing and animation, okay, so basically as I am a guest lecturer and visiting faculty in the many of the colleges as well as in companies, so there I used to give training on different area for different departments. So for that, like which software they are using and कौन से software से आपको अच्छा job मिल सकता है, or maybe you can work from home. So basically our main target is to make you understand कि क्या-क्या ये industry में है. Like now you can see the scope of the industry. Like when we are talking about designing, animation, presentation, so it is more related to advertisement, corporates, TV and news, movies, gaming, radio, FM, web series, and many digital marketing. Now you can see कि ये industry कितना बड़ा है. Like you can see advertising industry is almost around 56 crores. TV and news channel is 714 billions, movies 180 billions, and so on. And gaming, you can know, right? So like most of the people are like this designing, animation, presentation, and ये industry में इतना scope है कि they want a smart people to work with, right? Now see, basically when we are talking about this, so हमारे दिमाग में पहले आता है BMM, right? So BMM is more related to advertisement, journalism, animation. And in SNDT college, SNDT we have options like in third year they have animation in-house course, right, related to BMM, right? And this industries is also connected to many other industries also, right? So today I am going to guide you related that. Okay, when we are talking about designing and animation, so उसके steps होते हैं, right? So basically लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा designing sense अच्छा है या मुझे मेरा creativity अच्छा है तो ही हम लोग ये field में जा सकते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Because even if you don't know much about designing, presentation skill or many other things, then also you can do with the help of this kind of software. And when we are talking about graphic and animation, it's always start with graphic designing, 2D animation, 3D modeling and animation, audio video editing, VFX, that is spatial effects, right? So now graphic designing. So basically graphic designing आप बहुत सारे जन जानते हैं कि like graphic designing, or it's always start with advertisement and DTP work. So DTP means desktop publishing. So earlier people used to know कि DTP यानी magazines बनाना, newspaper बनाना या लेटर हेड्स बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, तो लोग DTP यानी वो समझते थे या ग्राफिक डिजाइनिंग वैसा समझते. बट अभी इन अ मॉडर्न वर्ल्ड ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है, because there are n number of things related to this line and connected to this, like DTP, photo editing, journalism, 2D jewelry designing, interior designing, fashion designing. ये फील्ड इतनी सारी इंडस्ट्री को टच करती है, राइट? एंड ऑल्सो टू विजुअल कम्युनिकेशंस, लाइक उसमें फ्यूचर स्कोप है, लाइक ग्राफिक डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइनर, exhibition designer, magazine designer. So there are n number of scope related to graphic and visual communications. So when we are talking about DTP, so उसमें we'll try to focus कि उसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. Like आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट हुई तो लोग बैनर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, एज वेल एज जर्नलिज्म, जैसे न्यूज़पेपर आया, मैगजीन्स आया, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. सो उसमें लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए भी होंगे, जैसे इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड इन डिजाइन, राइट? सो उसमें क्या क्या स्कोप है. नाउ यू कैन सी
कि इसमें हम लोग ने लेटर हेड है, यहाँ पे यू कैन सी द लेटर हेड, brochures, banners, and number of things. So same way it is used for advertising, branding, logo designing, letterhead, printing, brochures, newspaper, magazines, banners, flyers, packaging, cartoon designing, fashion and jewelry. So you can see the projects कि यहाँ पे ये सभी टाइप का आपने कहीं ना कहीं वर्क देखा ही होगा, right? So it is also related to tiles designing, pattern making, cartoons and so on, right? So it's always start with this is known as 2D design. Okay, so this is a part of graphic and DTP, right? Now the second stage, आजकल सब कुछ जैसे that I had a talk about print media. Now this is more related to online media. So जैसे web designing या website या apps designing is also part of advertisement, right? So उसमें वेब डिजाइनिंग भी आजकल हर कंपनी का वेबसाइट होता है. आप मूवीज वाइज देखो या आप आईपीएल देखो या XYZ इंडस्ट्री देखो, सब लोग अपना वेबसाइट्स बनाते हैं. बहुत सारी जन गेमिंग एप्स भी बनाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड एनिमेशन. सो यू कैन से वेब डिजाइनिंग, देयर पीपल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो लोगों ने 9th-10th में या 11th-12th में यूज भी किया होगा इन IT, HTML, DHTML. बट फर्दर उसको प्रोफेशनली डिजाइन करने के लिए we need to know JavaScript, Dreamweaver, Wix है या Flash है. So you can create a website properly. Now ये industry में like people are having a very good scope. Like people are उनका starting salary होता है between 5 to 10,000 and they can reach up to 40, 50, 60,000 also, right? And the best advantage of this industry कि आप घर पे बैठ के भी ये सब सारे काम कर सकते हो. यानी आप स्टडीज के साथ बोलो या आप कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ पार्ट टाइम आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, सो आपको ये सभी टाइप का काम जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना या किसी के कंपनीज के लिए लोगो बनाना या लेटर हेड बनाना, तो लोग आपको घर पे बैठ के भी ये सारे काम देते हैं. सेम वे वेब डिजाइनिंग इज ऑल्सो सच काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें आपको घर पे बैठ के वेबसाइट्स बनाने के भी काम बहुत सारे मिल जाता है, राइट? So now you can see every companies are having their website, so they want good designer जो उनका website या advertisement design करके दे. Now जैसे ही वो उसका further steps है, जैसे graphic designing के एक steps आगे हम लोग जाएंगे, so that is a 2D animation. So in 2D animation we have a software like Flash, image editing, GIF creator, जिससे आप ये देख सकते हो कि जैसे छोटा भीम या ये सब जो कार्टून्स होते हैं वो सब इसमें बनाए जाते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ 2D एनिमेशन. मम्मी यार दरवाजा बंद कर. 2D एनिमेशन में जैसे छोटा भीम, कृष्णा, ये जो आपने 2D कार्टून बनाए होंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ 2D एनिमेशन. सो जैसे हम लोग ने उधर कार्टून बनाया तो अगर उसको मुझे मूविंग करना है, सो वी कैन क्रिएट इन द फ्लैश एंड ऑल, राइट? ओके, नाउ जैसे ही 2D खत्म होता है, people are thinking about 3D, right? So 3D visualization is also a big industry. So it is again also connected to many other industries also, like architect or interior designing, right? Set designing, 3D visualization, films and so on. So 3D जब भी when we are talking about 3D तो उसमें आता है 3D modeling, राइट? तो 3D मॉडलिंग आप जैसे ये यहाँ पे दिखाया है कि इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड सेट डिजाइनिंग जो यूज करते हैं ये सब का, तो आप कोई भी आप नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो यू कैन सी वहां पे बाहर पहले से ही एक पोस्टर्स लग गया होता है या बैनर्स लग गए होते हैं कि आपका बिल्डिंग ऐसा होगा, आपका एरिया ऐसा दिखेगा, आपका घर ऐसा दिखेगा, आपका ऑफिस ऐसा दिखेगा. सो दैट इज अ 3D विजुअलाइजेशन, राइट? यानी बनने से पहले ही 3D विजुअलाइज करते हैं जिससे उनको समझ में आता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा होगा या ऑफिस कैसा होगा या घर कैसा होगा. सो फॉर दैट दे आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर लाइक AutoCAD 2D, 3D, 3D Max, Google SketchUp, Rhino, CorelDRAW, Photoshop and Revit. So this kind of softwares architect, interior people are using. बट लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ने आर्किटेक्ट और इंटीरियर किया है तो ही अगर हम लोग ये इंडस्ट्री में जा सकते हैं. नो, even if you know this kind of software, तो आप ये सभी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हो because they want a good presentation skill, they want a good 3D visualization,
राइट. सो अगर आपको ये सारे ही सॉफ्टवेयर आते हैं, सो ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है जिसमें आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है, राइट. सो नाउ यू कैन सी कि आपने बहुत सारे जनों ने ये सब यहाँ पे देखा ही होगा कि ऐसे मेरा बंगलो या अपना मॉल या ऐसे घर या वो कैसे 3D विजुअलाइजेशन होगा, और ये सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग बनाया गया हुआ है. सो मेनी पीपल कैन विजुअलाइज दैट थिंग एंड वो प्रेजेंट करते हैं. एंड डू यू नो कि इसमें भी पे स्केल काफी अच्छा मिलता है. इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद 8 to 10,000 or 15,000, but it also reaches up to 60-70,000, 1 lakh rupees per month also. एंड आप इसका घर पे ही बैठ के आराम से 40-50 हजार का पर मंथ काम आराम से घर पे बैठ के काम कर सकते हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री में बहुत सारा काम आता है जो आउटसोर्स होता है, राइट. आउटसोर्स मीन्स आप काम घर पे बैठ के ले सकते हो और आप घर पे ही बैठ के ये सब काम उनको दे के अर्न कर सकते हो. एंड इफ यू हर्ड अबाउट वॉक थ्रू, तो वॉक थ्रू होता है कैमरा व्यू जो 3D जाता है और जो इंडिविजुअल रूम दिखाता है. सपोज आई एम गिविंग वॉक थ्रू ऑफ माई रेसिडेंस प्रोजेक्ट, तो वो आएगा, पहले लिविंग रूम में कैमरा जाएगा, फिर बेडरूम में जाएगा, 2 बेडरूम दिखाएगा, किचन दिखाएगा, वॉशरूम दिखाएगा. तो वो जो एक कैमरा व्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू, राइट. सो वॉक थ्रू का लोग 4-4, 5-5 लाख रुपया भी लेते हैं, राइट. लोगों को ये इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होता है बिकॉज उनको किसी ने गाइड नहीं किया है. सो by this medium we want to make you aware कि ये फील्ड में कितना अच्छा स्कोप है जिसमें आपको जॉब्स भी अच्छे मिल सकते हैं या आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो, राइट. ना वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया इंटीरियर आर्किटेक्ट, तो आप जैसे देखते हो कि अपने एनएससी ग्राउंड में बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं. So they want a stall designer. So now you can see this kind of stall designing also, right? So ये भी with the help of softwares वो लोग presentation बनाते हैं और वो लोग stalls design करके देते हैं. And do you believe कि ये exhibition throughout the world होता है, यानी continuous हर जगह पे ये सारी चीजें उनको जरूरत पड़ती है. यानी आज इंडिया में है तो कल चाइना में होगा, परसों यूएस में होगा एंड सो ऑन. तो ये एग्जीबिशंस कंटिन्यूस कहीं ना कहीं होते हैं. सो दे कंटिन्यूस वांट अ गुड 3D विजुअलाइजर और दे वांट कि उनको अच्छे कोई 3D स्टॉल्स बना के दें. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट. नाउ अगेन बैक टू दिस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिल्म्स or advertisement or news channels or different serials, क्योंकि they want a good set designer, 3D set designer. So now you can see this कि ये news room का बनाया हुआ है या फॉर एग्जाम्पल ये मूवीज के लिए बनाया है जैसे बाहुबली. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा महल, सो दे आर क्रिएटिंग सेट्स. अभी जैसे हमारे लाल बाग के गणपति के लिए भी लोग सेट्स बनाते हैं, अच्छे इतने भव्य सेट बनाते हैं, यूज सेट्स बनाते हैं. तो दे आर यू नो एक्चुअली पहले वो लोग कंप्यूटराइज 3D में बना के देखते हैं कि वेदर इट इज फ्लेक्सिबल और वेदर इट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल और नॉट, क्योंकि उसका बहुत सारा कॉस्ट सेव होता है और उनका परफेक्शन आता है. सो दैट्स व्हाई वो लोग प्रॉपर्ली कंप्यूटराइज सेट डिजाइनिंग भी करते हैं, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडस्ट्री जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है. नाउ अगेन अ 3D ज्वेलरी डिजाइनिंग, right? So 3D ज्वेलरी डिजाइनिंग, when we are talking about 3D, so 3D मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें यहाँ पे टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है एंड ये 3D व्यू होता है, यानी ये एक्चुअल 3D दिखता है. एंड इवन ज्वेलरी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि जब तक दुनिया में लड़कियां रहेगी तब तक ज्वेलरी कभी बंद ही नहीं होने वाला है, राइट. सो ज्वेलरी डिजाइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड जिसमें 3D डिजाइनर का जरूरत पड़ता है एंड उसमें 2D डिजाइनर का भी जरूरत पड़ता है, बिकॉज इन दैट Corel and Photoshop जिसमें 2D डिजाइनिंग होता है, ज्वेलकैड और उसमें राइनो उसमें 3D डिजाइनिंग होता है, राइट. सो बेसिकली 3D डिजाइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड इन ज्वेलरी इंडस्ट्री, राइट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें ये सब सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमेशन. ओके, सो एनिमेशन आपने अगर देखा होगा एनिमेशन, राइट. सो एनिमेशन मूवीज में यूज होता है
मूवीज में यूज होता है, सीरियल्स में यूज होता है, गेम्स में यूज होता है, एंड बहुत सारी जगह पे प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए यूज होता है, राइट? तो उसमें नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द सॉफ्टवेयर पार्ट के उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे 3D Max, माया, यूनिटी, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, साउंडफोर्ज, स्मोक, न्यूक एंड सो ऑन, राइट? सो नाउ यू कैन सी ये कैरेक्टर्स आपने सभी ने देखे होंगे, लाइक एवेंजर्स हुए, राइट? या डायनासोर हुए, या दूसरे कोई 3D कैरेक्टर्स हुए जो प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे बनाए गए हुए, राइट? सो ये कितना अच्छा इफेक्ट्स, नाउ यू कैन सी जब ये पिक्चर हिट्स होती है तो नाउ आप फिगर्स देखते होंगे कि कितना सारा वो लोग अर्न करते हैं, राइट? सो दैट इज अ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज अ पावर ऑफ डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, right? So and gaming, so everyone knows PUBG कितने लोग यूज करते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री भी कितना बड़ा है, तो they want a good 3D visualizer and 3D creator, like 3D model creator or maybe 3D character creator. They want this kind of students जो उनसे आउटपुट अच्छे से अच्छा उनसे ये करवा सकते हैं, राइट? ओके, नाउ जब ये 3D मूवीज बनता है तो उसके पीछे लगता है साउंड या वीडियो को एडिट करना, अनवांटेड पोर्शन को निकाल देना। सो उसमें सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एडोब प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स, जिसमें यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, यू कैन ऐड साउंड्स, यू कैन कट अनवांटेड पिक्चर्स और अनवांटेड पार्ट ऑफ वीडियोस। सो आप उनको अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो, और ये भी इंडस्ट्री काफी अच्छा है, जैसे बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, मूवीज आ रहे हैं, सो दे वांट गुड वीडियो, ऑडियो वीडियो एडिटर्स। सो ये भी इवन आप शादियों में आप ऑडियो वीडियो एडिटिंग यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आजकल यूट्यूब पे प्रेजेंट करते हैं अपने वीडियो, सो दे वांट गुड ऑडियो वीडियो एडिटर आल्सो। नाउ दे वांट अ गुड a person who can give special effects. So आपने ये देखा होगा, बिजली चमक रही है, आग लग रही है, so that is this kind of special effects. This kind of special effects is also there. This kind of also means you can use this kind of special effects, right? So उसके लिए After Effects and there are n number of softwares people are using. Okay. Now again a big part, अगर आपने सुना होगा digital marketing, right? So digital marketing is also advertisement. It is a part of advertisement because आजकल सभी जन Facebook, Twitter, Instagram बहुत यूज कर रहे हैं, so they want कि उस पे भी एडवर्टाइजमेंट हो, राइट? सो उसके लिए भी आपको वो फोटो एडिट करना पड़ता है या वीडियो ऑडियो एडिट करके देना पड़ता है। वो लोग कंटिन्यूस अपने पोस्ट करते हैं, सो उनको एक ब्राइट करना होता है, या देयर आर एन नंबर ऑफ इफेक्ट्स दे वांट टू ऐड। सो डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस डिजाइनिंग एंड एनिमेशन फील्ड। ओके ओके, नाउ इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारा स्कोप है जिसमें आपको काफी अच्छा जॉब मिलता है। एंड SNDT कॉलेज उनका इन हाउस भी टाई बहुत सारी कंपनीज के साथ है, जहाँ पे अपने स्टूडेंट को वो लोग डायरेक्टली प्लेस करते हैं। एंड ये वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, सो पीपल वांट्स टू ऐसा कोई इंडस्ट्री जिसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते। सो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री जहाँ पे आप जॉब करो तो भी काफी अच्छा है, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और मे बी यू कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, राइट? थैंक यू। सो आई होप कि मैंने ये प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा अवेयर कराया होगा कि ये इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और आप इसमें क्या कर सकते हो। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट प्रीति मैम टू टेक ओवर, प्लीज। प्रीति मैम, yeah, just 2 minutes, yeah. So here we are back. Now sir has given you explanation about all the media industries, and I hope कि आपको बहुत सारे
फील्ड्स का नॉलेज गेन हुआ होगा कि कौन कौन सी फील्ड में मीडिया में हम काम कर सकते हैं, लाइक ज्वेलरी बताया सर ने, बहुत सारी चीजें बताई. So now I'll just give you how the media Bachelor of Arts in Media is working at our college, at Sri Amritsar Mahila College. So here our aim and objective is to make our students ready for media industry. We are trying to make our students ready for media industry, and our objective is to maintain the highest standard of academic excellence by creating a media environment and to enhance their skill in mass communication through practical experience of media development of the student. This is the objective of the media department. Now, if we talk about the curriculum planning, syllabus, content analysis, teaching plan, academic calendar, examination calendar, activity calendar, and all these things are given in advance to the students before we begin with the session. So every students, we have a first meeting and then we just give everything to the student. हम सारी चीजें बिगिनिंग में ही बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे सेशन स्टार्ट होना होता है हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. And we have program objective is to provide through understanding of nature, scope and application of media and its uses in today's dynamic world. What is the program objective? हमारा program objective ये है कि हम किस तरीका से मीडिया से रिलेटेड नेचर स्कोप को बच्चों को एप्लीकेशंस को अच्छे से समझाएं. And then we are focusing on preparing students for a role pertaining to media industries, learn about film, shooting, reporting. If we talk about special subject objectives, then we just see कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जैसे जर्नलिज्म रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उससे बच्चा किस तरीके से सीख कर आगे बढ़ेगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कौन सी चीजें हमें उसके थ्योरी सब्जेक्ट्स में को रिलेट करनी है हम वो बताते हैं. वैसे एनिमेशन के सब्जेक्ट्स हैं तो एनिमेशन के सब्जेक्ट्स में अगर बच्चों को प्रैक्टिकली को रिलेट करना है तो वो कैसे करेंगे. We do have value-added courses. Value-added courses are the courses which is given to the students apart from their curriculum studies, as we have filmmaking, voice modulation, office automation, Photoshop, VFX, CorelDRAW and After Effects, graphic designing. These are the value-added courses which is open for all and especially for the mass media students. If you see about the graph, we started our BMM in 2013-11 and this is the strength of the students. We have intake capacity of 60 and every year we have more than 60 students joining to the stream and we have very limited seats. So those who come first get opportunity to take admission first. And what are the opportunity for students to learn? यहाँ पर डिजाइनिंग इंडस्ट्रीज की जो जितनी भी चीजें होती है वो सब कुछ सिखाई जाती है और सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाती है. तो सर्टिफिकेट, ब्रोशर, पोस्टर, बैनर, लीफलेट्स, ये सारे बच्चे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और सीखते हैं. एंड दे गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग थ्रू दिस. आप यहाँ पर देख सकते हो. And they do learn from photography as well as anchoring. So these are the fields the students learn in the field of media. And if you can see here, आप यहाँ पर एक image देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे हमारे कॉलेज इवेंट्स के बैनर्स हैं. So you will be surprised to know all these banners are designed by our TYBMM students. They work with us as an intern and they design. They have in final year they have internship. So students do join other companies for internship as well as they do internship in our college too. यहाँ पर जितने भी डिजाइन है, आवाहन जो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है, मिलांच मीडिया इवेंट है, सो दीज आर सो मेनी इवेंट्स. तो यहाँ जितने भी पोस्टर्स हैं सब पोस्टर्स बच्चों के द्वारा डिजाइन किए हुए हैं. इस पोस्टर डिजाइन के दौरान बच्चों की खुद की क्रिएटिविटी बाहर निकलती है. वो क्या सोचते हैं, किस तरीका से पोस्टर में हमें किस चीज को कैसे प्लेस करना है, तो वो अपनी ओन क्रिएटिविटी पे वर्क करते हैं. So and here you can see the certificates. So all posters and certificate are designed by the students and they learn so many things from this. They do media students also take part in photography. They take all events photographs. They do anchoring. So through this they learn so many things. Now if we talk about teaching learning process, that is a student centric method.
कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा है तो उसमें पढ़ाने का जो मेथोडोलॉजी अप्लाई हो रहा है दैट इज टोटली स्टूडेंट सेंट्रिक। मीन्स कोई अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा मोटो ये है कि किस तरीका से बच्चों को उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। सो वी आर सो मेनी थिंग्स टू डू विद, जैसे लर्निंग थ्रू विजिट्स, लर्निंग थ्रू फिल्म प्रोजेक्ट्स, ICT, puppet making, clay modeling, street play, model making and more events. तो ये जो सब आप देख रहे हैं, we have theory subjects, but these subjects, total theory subjects are correlated with practical aspect. हर एक theory subjects के particular subjects को practical aspect से correlate किया जाता है, सारे faculties correlate करते हैं और उसके बाद practically वो उनको सिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, we have taken students to the Simaro entertainment. If you know about Simaro, you might have listened. Simaro is the big channel for media, and we do have DD National News Channel. तो क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स को बाद में जाकर मीडिया इंडस्ट्री में काम करना है, और अगर बच्चों को उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं होगा कि हमें इस इंडस्ट्री में जाके क्या करना है, कैसे करना है, so how they will learn? So for that, we are taking students to the visit to many media industries and news channels like Film City, All India Radio Channel. So student learn कि रेडियो चैनल में काम कैसे होता है, डीडी नेशनल्स में कैसे वर्क होता है, सिमैरो में भी जाके प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिखाया जाता है कि रेंडरिंग पर किस तरीके से काम होता है। तो ये सब उनको प्रैक्टिकली बताया जाता है। There are so many visits. They also go to the live visits. जितने भी शूट्स होते हैं तो सूट्स पर भी ले दिल है, हिंदुस्तानी सेट, बहुत सारे सूट्स जो रहते हैं हम बच्चों को लेके जाते हैं ताकि वो लोग सीखे और देखें। Then we do have field work by students, means बच्चे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए they do the group projects for film making and event management and they may do street play. उसके लिए वो लोग बाहर जाते हैं, जगह जगह पर जाके मीडिया के स्टूडेंट अपने गुणों के द्वारा स्ट्रीट प्ले से बहुत सारी सोशल मीडिया के इफेक्ट्स को बताते हैं। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए बच्चे ग्रुप में जाकर शूटिंग करते हैं, एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे हमारे बच्चे इवेंट हैंडल कैसे होता है, वेरियस कॉन्सेप्ट्स पर इवेंट करते हैं और इवेंट को हैंडल करते हैं। एंड दिस यू कैन सी लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट। लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट एज सर ने आपको बताया कि 3D सिखाया जाता है, फिर कोर्स में आपका जैसे मैगजीन एंड जर्नल एक पेपर है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3D मैक्स का एक इमेज दिखाया जा रहा है जिसमें एक बिल्डिंग का मैप दिखाया गया कि ये बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, कार यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, दैट इज जस्ट अ मॉडल। तो ये क्या है, ये बच्चे के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है जो 3D मॉडल में बनाया है। इवेंट मैनेजमेंट का यहाँ आप देख रहे हो जो कि बच्चे किस तरीका से जाते हैं और इवेंट हैंडल करते हैं। एंड वी डू हैव मैगजीन, यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे होगे, सी द दर्शिता पटेल स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज एंड दे डिजाइन देयर ओन मैगजीन कवर्स। तो मैगजीन कवर कैसे बनाया जाता है, दे ऑल डू प्रैक्टिकली। लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो दे डू डिजाइन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर डिजाइन करते हैं, पोस्टर डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो अगर आप देखें तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका सब सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग होता है। We do have innovative practices, जो आपने जनगणना कल प्रोग्राम के बिगनिंग में देखा था तो वो मीडिया के बच्चों ने बनाया था। यहाँ देखिए ये शूटिंग किस तरीका से बच्चों ने किया है, और जनगणना जो कल आप लोगों ने बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम में, इनॉग्रेशन ऑफ प्रोग्राम में देखा था, वो इस तरीका से बच्चों ने बनाया था। Apart from this, students are also working on environmental sustainability program. We have collaboration with Green Mission Mumbai, and Green Mission Mumbai and our college take part together and work for environment sustainability कि हम environment को कैसे sustain रख सकते हैं। तो बच्चे ये भी सीखते हैं कि other than only teaching learning process, what we can do for social activity works. You see the infrastructure of the college. We have computer labs and green chroma room. This is the chroma setup specially for media students, जहाँ मीडिया स्टूडेंट्स अपनी शूटिंग करते हैं मूवी बनाने के लिए। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द क्रोमा सेटअप। क्रोमा सेटअप में हमेशा ग्रीन पर्दा होता है। ये एग्जैक्टली क्या है, ग्रीन पर्दा क्यों होता है? आप बड़े बड़े मूवीज में या कहीं पर भी देखो, अगर आपको अभी सपोज
ये देखना है कि मैं तुरंत एफिल टावर मेरे पीछे हो, मैं एफिल टावर पे के सामने आगे रहूं और एफिल टावर पे मेरे पीछे दिखे, तो आप अभी तो तुरंत नहीं पहुंच सकते दूसरे प्लेस पर, राइट। तो इसके लिए क्या होता है कि हम शूटिंग जो करते हैं ग्रीन क्रोमा सेटअप पे करते हैं, ग्रीन पर्दे पे किया जाता है। उसके बाद ग्रीन कलर का ये है कि जो भी आप बैक में इमेज डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पीछे आप कोई भी सीन डालना चाहो, माउंटेन का डालना है, कोई सीनरी डालनी है, दैट यू कैन पुट, बट द शूटिंग विल बी ओनली डन इन अ वन ग्रीन रूम। शूटिंग वहीं पर होगी लेकिन आप उसके इफेक्ट्स को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली हमारे बच्चों को सिखाया जाता है। If we talk about the Media Fest Melange, this is the fest of our own college, Media Fest, and which we are having from last 5 years. 5 years से Melange the Media Fest बहुत अच्छे से है, और इसमें आप ग्रोथ देख सकते हो कि पहले हमारे कॉलेज कितने कम कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते थे, 0, 10, 10 से 20, and then now we are having more than 40 colleges and more than 250 participants participating in our events. And here you can see the glimpses of Media Fest and renowned personalities coming to our college. हमारे कॉलेज में मीडिया फेस्ट के दौरान एक साथ 3 से 4 हजार बच्चे इस प्रोग्राम को देखते हैं, और उस वक्त बहुत बड़े मीडिया इंडस्ट्री के स्टार्स आते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं बच्चों के साथ, एंड स्टूडेंट्स आल्सो लर्न, एंड ये 2 दिन का एक इवेंट होता है। एंड स्टूडेंट्स डू गेट ग्लोरीज फॉर द कॉलेज। कॉलेज के लिए वो हर समय बहुत सारे प्राइजेस लेकर आते हैं। हमारे कॉलेज में जैसे मीडिया इवेंट, और हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टार लाइक हेमा मालिनी एंड मेनी मोर स्टार्स हैव कम टू आवर कॉलेज. Anandi Ben has come to our college, and see, innovation and creativity in teaching and learning. So students माइम एक्ट करते हैं, पपेट शो करते हैं, क्ले मेकिंग करते हैं, ये सब करके वो लोग बहुत सारे चीजें करते हैं और इस तरीका से वो सीखते हैं. And here I can show you little glimpses of seminar in department, that seminar related to communication skills. Then we do have a seminar of Zika, then branding seminar, journalism related seminar. So different aspects of seminar is provided to students. Animation workshop is what? If you have to make a small movie in 2D, अगर आपको कोई भी एक मूवी बनानी होती है 2D में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2D के कैरेक्टर्स को पेपर पे, कार्टून कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना होता है एंड उसकी पूरी स्टोरी को लिखनी होती है. तो ये एक वर्कशॉप होता है जिसमें बच्चे वो पूरी प्लानिंग स्टोरीज को लिखते हैं एंड देन दे गो टू डिजाइन द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, एंड देन दे डिजाइन द 2D movies. And we do have motivational and interaction skills with the personality development seminar for improving the personality development of the students. As I said, we do the holistic development of the students to get the good results. So we have competitive examination as well as career counseling and soft skill development courses to make the student industry ready and to be a better product. If you talk about, if we see here a graph, then you can see from last 5 years, I'm very happy to say that last 5 years से हमारे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 100% है, 100%. All students are getting first class and they are also university toppers with 100% result. And this outcome comes why? Because the teachers and the college and the management all are doing the collaborative efforts for the student. आप वो सब मिलकर इतना मेहनत करें और बच्चे भी अपना मेहनत करते हैं, इसलिए उनका बहुत अच्छा आउटपुट होता है. और इस आउटपुट का आउटकम आप यहाँ देख सकते हो कि जो बच्चे हमारे मीडिया के स्टूडेंट, उनका फाइनल ईयर में इंटर्नशिप होता है. इंटर्नशिप में बच्चे 6 मंथ किसी भी कंपनी में जाके अपना काम करते हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री लाइक सिमेरो, इंडिया टीवी, जस्ट डायल, पार्ट टाइम, मेट्रो मुंबई, ये सारी जो कंपनीज आपको दिख रहे हैं, मैक्स लाइफ न्यूज चैनल, तहलका न्यूज चैनल, नेटवर्क टीवी, समय, ये सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, और
मीडिया इंडस्ट्रीज है, इसमें हमारे बच्चे जाकर इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप के दौरान वो इतनी अच्छी चीजें सीखते हैं कि वहीं पर उनकी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है, एंड इफ दे वांट दे कैन स्विच द कंपनी. So like placement is even 100% for media students with very good companies and good package. So just I'll say thank you to saying this. Now we can start with the question answer session. Whatever questions you have, you can write in your YouTube chat box. We can answer for you here. So आप लिख सकते हो यहाँ पर अपने questions and we will be answering for you. Okay, so we will start with the question answer session. Whatever questions you write in your chat box, we will be answering you. Sir, I'll just tell you questions. Yeah. Students Please. are writing. Yes. Okay, you can give the glimpses to the student about media industry. कोई बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्रीज में किस तरीका से उनको जॉब का बेनिफिट्स मिल सकता है. See, there are many benefits in working with media industry क्योंकि उसमें एक तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया, राइट? क्योंकि उनको कंटिन्यूस एडवर्टाइज करना होता है या कंटिन्यूस कुछ प्रोमोस करने होते हैं. So they want a good 2D designer, they want good 3D designer, they want audio video editor also. So अगर आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर का या कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड का स्किल्स है, so you can easily apply to media industry and आपको काफी अच्छा काम मिलता है. And even if you are expert in that, so वो लोग आपके घर पे भी आपको काम या आपके ऑफिस से भी आपको काम करने देते हैं. Yeah. Right. Any other questions? Yes, sir. Next question. What are the chances to going to foreign? Students are asking कि इसमें कितना chances है foreign में work करने का? Yeah, see, now आप देखते हो कि अच्छी बड़ी मूवीज हॉलीवुड्स की या आज आप गूगल देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट देखते हो, तो सभी जगह पे आप देखते हो तो इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन लोग ज्यादा है अच्छी पोस्ट पे. एंड डेफिनेटली स्कोप एंड ग्रोथ बहुत है क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ने वाला है. लाइक नाउ यू कैन सी द आईपीएल. तो आईपीएल में लोग, आईपीएल इतना फेमस क्यों है? ड्यू टू देयर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, राइट? सो अगर इतना बड़ा, अगर कोई वो करोड़ों में प्लेयर लेते हैं तो उनका एडवर्टाइजिंग इवेंट या कंपनी कितना बड़ा होगा. सो दे वांट गुड स्टाफ, नॉट ओनली इन इंडिया. लाइक जैसे आईपीएल जैसे बहुत सारे अच्छे फुटबॉल्स की टीम है जो ये सब एडवर्टाइजिंग करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं. सो दे वांट गुड स्टाफ. सो बाहर जाने के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस है. इफ यू वेरी गुड विद दिस फील्ड, सो आपको बाहर जाने के लिए भी बहुत सारे अच्छे चांसेस है. Okay, next question we have, sir, कि अगर हम अपना फ्यूचर ज्वेलरी मेकिंग में बनाना चाहे, घर बैठ के मुझे ज्वेलरी डिजाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक स्टूडेंट ने किया है. See, ज्वेलरी डिजाइनिंग में देयर आर n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स पीपल आर यूजिंग. जैसे बताया कॉरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है. सो उसमें पहले 2D डिजाइनिंग होती है, यानी कोई हैंड डिजाइनर होता है जो विजुअलाइज करता है कि कौन सी इंडस्ट्री, जैसे यूएस वालों के लिए ज्वेलरी बनानी है या दुबई वालों के लिए बनानी है, क्योंकि दोनों के टेस्ट अलग है. तो वो लोग पहले विजुअलाइज करते हैं और हैंड डिजाइनर डिजाइन बनाता है, फिर उनको 2D डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉरल एंड फोटोशॉप. उसके बाद उसको 3D मॉडलिंग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वेल कैड एंड राइनो और n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, जिससे उसका 3D मॉडल्स बनता है. और वो 3D मॉडल को डायरेक्टली कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में जाता है. तो ये सारी डिजाइनिंग आप घर पे बैठ के भी, जैसे कॉरल फोटोशॉप पे या ज्वेल कैड या राइनो पे घर पे बैठ के भी काम ले सकते हो. एंड दे आर पेइंग यू पर डिजाइन चार्जेस. ओके. Again, there is one question asked by the students, sir. What is the scope of media in foreign countries? Like यहाँ से अगर हम graduate होते हैं, उसके बाद हमारा क्या scope है foreign countries में? Yeah, see, foreign country में अगर कितने लोग मास्टर्स करने जाते हैं या कितने लोग वहाँ पे स्पेसिफिक जॉब भी करने जाते हैं.
राइट। अगर जॉब करने जाते हैं तो आप बैचलर डिग्री आपके पास है और आपने ये सभी कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों को दे आर डायरेक्टली रिक्रूटिंग यू, राइट। या फिर अगर आप मास्टर्स भी करना चाहते हो तो दे आर अलाउइंग यू टू डू पार्ट टाइम आल्सो, एंड इफ यू नो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, सो वो लोग आपको पढ़ने भी देते हैं और काम करने भी देते हैं। सो वहां पे जाके भी आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं अगर आप ये सब इंडस्ट्रीज से हो या ये सब सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, रविंद्र लिख रहे हैं, दैट इज बैनर डिजाइनिंग के लिए क्या हम हिंदी लैंग्वेज में बैनर डिजाइन कर सकते हैं? या डेफिनेटली, अभी आप देखोगे कि सी आज हम लोग ने भी अपना सेमिनार इंग्लिश और हिंदी में लिया है, और हिंदी यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को हिंदी ज्यादा समझ में आती है या लोकल लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है। तो आप बैनर्स भी देखते हो तो पीपल आर यूजिंग हिंदी, मराठी और अदर लैंग्वेजेस आल्सो फॉर क्रिएटिंग बैनर्स, राइट। और उसमें सी ये सिर्फ डिजाइनिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। आप चाहे इंग्लिश में टाइप करो, हिंदी में टाइप करो या कोई अदर लोकल लैंग्वेज में टाइप करो, सो डेफिनेटली ये हर लैंग्वेज भी यूज होता है while doing advertisement. Actually, there is a student, I think he is a male student, so he is asking कि आपके कॉलेज में तो बहुत अच्छा मीडिया चल रहा है, लेकिन कैन यू सजेस्ट सम अदर कॉलेजेस एज वेल जहां मैं एडमिशन ले सकूं? या सी बेसिकली बीएमएम तो बहुत सारी कॉलेजेस में होता है, राइट। सो जैसे आई थिंक सो दालमिया कॉलेज में है, यहाँ पे भी है, अपना कांदीवली में भी कॉलेज है, सराफ कॉलेज में है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे ये मास मीडिया का कोर्स होता है। बट एसएनडीटी का एक एडवांटेज है कि एसएनडीटी में ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म, लेकिन वहाँ पे एनिमेशन भी स्ट्रीम है जो बहुत हार्डली कोई कॉलेज ऑफर करती है। सो डेफिनेटली आप अगर ढूंढोगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेज जो मास मीडिया का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। So let me add to this answer. Like if we talk about animation industry, animation का जो BMM मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत जगह है, लेकिन animation is the course. Animation जो ऐसा कोर्स है वो हमारे ही कॉलेज SNDT यूनिवर्सिटी के हमारे कॉलेज में ही प्रोवाइड किया जाता है एज ए स्पेशलाइजेशन. And our college is a women's college, so most of the girls can take benefit of this. And one more question, sir, कि student asking regarding pay packages, कि हमारा पे पैकेज कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक रीच कर सकता है? तो मेरे हिसाब से ओके, आप बोलिए सर। या सो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज दिया, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, 2D एनिमेशन हुआ, या 3D मॉडलिंग हुआ, या ऑडियो वीडियो एडिटिंग हुआ। तो यहाँ पे काफी अच्छा पैकेजेस होता है, राइट। सो इट्स ऑलवेज depends on your computer skill, depends on your knowledge, depends on your experience. So ये पैकेज होता है 2-3 लाख से स्टार्ट होता है, and you can reach up to 12 to 15, 18, 20 lakhs also per year, right, per annum, right. So ये इंडस्ट्री में पैकेज, सैलरी पैकेज कोई इश्यू नहीं है। they want a talented students जिनको ये इंडस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए या ये सब सॉफ्टवेयर का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए ये इंडस्ट्री में कोई इश्यू नहीं है पे देने के लिए, राइट। they want a good talent. Okay, thank you for your answer, sir. I think students are also asking something related to the fee structure. So let me tell you students, BMM की fees हमारे कॉलेज में कोई ज़्यादा नहीं है. We are having only 20,000 as a fee structure for BMM course, and that is again for 1 year, not for even semester. एक semester का नहीं है, ये सिर्फ 1 year का fee structure है. Okay, and we have only strength of 60. Max to max we can take intake of 72 students, so admission is totally on first come first basis, or because we have very limited seats. और जो भी है आपको इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू मीडिया इंडस्ट्री आपके ग्रुप में और भी अगर आप क्वेरी करना चाहते हो तो कर सकते हो. एंड वी विल हियर एंड विद दिस सेशन, बट बिफोर एंडिंग द सेशन आई जस्ट वुड लाइक टू से कि आपको आई थिंक ये 2 दिन का जो मीडिया का प्रोग्राम रहा, डिजिटल फ्यूचर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का वेबिनार रहा,
अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा इससे, और आपको ऑफ कोर्स इससे बेनिफिट हुआ होगा, और आगे भी आप इसको हम लाइव रखेंगे तो आप मोर स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और फीडबैक फॉर्म जो है, दोनों दिन का फीडबैक फॉर्म एक ही फीडबैक फॉर्म में दिया जाएगा, और जो कि आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए, वहां पर आपका फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, और आप वहां पर जो भी फीडबैक फॉर्म भरोगे उनका सर्टिफिकेट जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर आ जाएगा। ओके, सो thanks. I think we will just wind up with the session, and thank you all. And we thank once again to our management, principal, vice principal, and supervisor of the college for giving us this opportunity to contact with the students. And I thank you all for listening to us very patiently. And I hope this session will give you lots of information, and you may share this information with of your friends. Thank you very much. Thank you. Thank you. I think one student has asked about the duration of course. So let me just complete with your answer. It's a 3-year and it's again a degree course. आपका ये degree ही course है, तो इसलिए you can join BMM or a BCA as a degree course. It's a 3-year degree course. Thank you all. So we will end the meeting here. Thank you very much.